Good evening, viewers. Router 360 welcomes you all to our third live session. Today we are having with us Mr. Hema Lakhani Khimasia, who is an expert in childcare, child counseling, and childhood parenting. She is having more than 20 years of experience. We welcome you, ma'am. As we all are in this pandemic and we are all stuck in our house in this lockdown, actually, so the most common question, what do I do now? This is the most common question everyone is having, man, especially parents, children, and mostly the school children, because this is the most common question. क्योंकि अभी घर में रह के करेंगे क्या, किसी को कुछ पता भी नहीं है, मैम. we, Sure. we have never faced this situation. तो आज ये सेशन उन पेरेंट्स, उन बच्चों के लिए है जिनको शायद आज ये सेशन से कुछ ना कुछ, I think they must be having some really good answers, and we will be having good discussions. Emma. So Supankar, your voice is not clear. It's breaking. Okay, I think it's breaking. Okay, yes. I think there is some technical problem. Okay. 1 minute, ma'am. We can start from the beginning. Yes. Can you hear me now, ma'am? Yes. Okay, yeah. So we are so sorry, viewers, due to some technical problem. So here we are, ma'am. So as we know, today our topic is parents, children, and lockdown. So yeah. What you want to say in this context, ma'am? Okay. Good evening, Shubhankar, and good evening, all viewers. So these three big words that is been heard every time, at every house: corona, pandemic, lockdown. These three words. Even children, we hear children also speaking this, but believe me, children don't know the meaning of this. These little children, my heart goes out for them. And I would like to discuss it in three phases. Like when initially lockdown was imposed, most of the parents, the children, most of people took it as if we are on picnic or we are on holidays. Nobody was serious about it and all. So everybody enjoyed the lockdown session. And exactly. When the second lockdown was imposed, yeah, it was like a vacation. But when lockdown was imposed, we could see that there was little, parents were disturbed much. कि अब क्या होगा, क्या करना है. And when the third lockdown is imposed, everybody is shattered कि अब क्या करना है, क्या होगा. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को हुई है, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों की मनोस्थिति अगर हम बोलते हैं तो सब जगह से यही कोरोना की जब खबरें सुनते हैं कि इतने डेथ हो गई, इतनी ये हो गई, और सबके घर में लाइक continuous television news में everybody was busy with that only. तो बच्चों के मन पे सबसे ज्यादा असर ये पड़ा है कि भाई ये कोरोना क्या है, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये है वो है. तो कि ऐसा था उनको कि इट्स कुछ है, वो बहुत डरावना है. एंड हमें स्कूल नहीं जाना है तो वी एंजॉय इट. थोड़े दिनों बाद जब उनको बाहर खेलने भी नहीं जाना है ये पता चला तो दे वर वेरी मच डिस्टर्ब कि अब खेलने भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम घर पे भी नहीं जा पा रहे हैं. और काफी कुछ हमने बहुत सारे मतलब मोटिवेशनल फेसबुक पे सब लेक्चर्स वगैरह हम देखते हैं कि सबको ये कहते हैं कि ये पल भी बीत जाएगा. आप लोग कहते थे कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो अब टाइम मिला है तो टाइम का आप सदुपयोग कीजिए. तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं ना शुभंकर, तो ऐसा लगता है कि टाइम मिल रहा है, बट मॉम्स को टाइम नहीं मिल रहा है. बिकॉज घर में सबने एक पिकनिक की तरह बना रखा है कि एवरी डे यू सी सम और अदर पर्सन posting on FB about their cooking skills.
तो ये सब करता जी कौन है? मॉम्स ज्यादातर। और सब ऑर्डर्स बिल्कुल रहते हैं, ये बिल्कुल खाना है, वो खाना है। तो इसमें बच्चों बच्चों को जो मॉम्स का अटेंशन मिलता था, वो अटेंशन मिलना बंद हो गया। जी इसकी एक साइड इफेक्ट ये है कि मॉम्स को जो बच्चों का अटेंशन मिलता था, वो अटेंशन मिलना बंद हो गया है। और जब ये अटेंशन मिलना बंद हो गया है, तो बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस देखे गए हैं। बिल्कुल मैम। और बच्चे अचानक से गुमसुम रहते हैं, अचानक से रो पड़ते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ छोटे बच्चों के, जो बच्चे 10 साल से अंदर हैं, मतलब 3 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों की बात कर रही हूँ। तो जी ऐसे मैम। भी सिचुएशंस आए हैं कि जहाँ बच्चे एकदम से रोने लगते हैं। और जब से ये थर्ड फेज ऑफ लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, अ, सबने सोचे समझे बिना, मतलब ऐसे सोचूंगी कि एवरी स्कूल एवरी वे, ऑनलाइन पढ़ाई, चाहे वो छोटे बिल्कुल बच्चे मैम। हैं चाहे बड़े बच्चे हैं। मैं ये नहीं बिल्कुल कहती हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई बुरी है, बट एक साथ 3-3 घंटे 4-4 घंटे अचानक से बच्चों के रूटीन में चेंज आ गया है। दे वर नॉट बिल्कुल इवन बिल्कुल गिवन मैम। टाइम टू सेटल डाउन। जो और कि ये इसमें एक्सपेरिमेंट पहले सबसे कभी बड़ी मतलब बात, अप्लाई हुआ भी नहीं था। जी, ऐसा हुआ नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे लॉकडाउन इम्पोज हुआ, सबने वो जो पिकनिक एंड हॉलिडे मूड लिया, उसमें बच्चों की रूटीन चेंज हो गई है। जो बच्चे सुबह 5 बिल्कुल साढ़े 5 बजे स्कूल के लिए उठते थे, वो अचानक से 10 साढ़े 10, किसी के 12 बजे उठते, किसी के 9 बजे उठते। तो ये रूटीन देखा गया है। एंड रात को सोने का रूटीन जो 10 बजे साढ़े 10 बजे तक का था, वो अचानक से 12 बजे 1 बजे का हो गया है। तो बच्चे बिल्कुल। इसमें डिस्टर्ब हो गए हैं। और ये बच्चों जी की जी ग्रोथ जी पे भी बहुत बिल्कुल असर करता है। अब एज अ पेरेंट हम लोगों को ये चीज को एक्सेप्ट करना है कि ये सिचुएशन आई है, तो अब पेरेंट का रोल इसमें क्या हो जाता है। बिल्कुल हमने मैम। छुट्टियां मना ली, फर्स्ट लॉकडाउन में छुट्टियां मना ली। सेकेंड सेकेंड लॉकडाउन हम मेंटली थोड़े प्रिपेयर हुए हैं, बट थर्ड लॉकडाउन वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि नाउ दिस इज द सिचुएशन एंड दिस विल, वी नेवर नो व्हेन विल इट एंड। और अगर सपोज बिल्कुल ये लॉकडाउन खुलता भी है, तो बहुत सारे दिनों के लिए छोटे बच्चों को स्कूल जाने की परमिशन अगर सरकार देगी कि नहीं, ये भी नहीं पता है। तो उनकी बिल्कुल पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, ये हम सब मानते हैं। पर अब ये डिफिकल्टी ये है कि पेरेंट्स को पता नहीं है कि पढ़ाया किस तरह जाए, ये हो जा रहा है। और ऑनलाइन बहुत सारे होमवर्क मिल रहे हैं। बहुत से ऐसे भी पेरेंट्स हैं कि दे वर डिपेंडेंट ऑन ट्यूशन टीचर्स। अब ट्यूशन यस टीचर यस नहीं सकती आपके घर, और से होमवर्क मिलते जा रहे हैं। तो वो भी पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आके हम लोग सामने देख रहे हैं। जी मैम। अब अगर दूसरी तरह से देखा जाए शुभंकर, तो हम ये लेंगे कि पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। नाउ खास करके ऑब्वियसली मैं मैम, बोलूंगी फॉर पापा, एवरीवन पेरेंट्स आर देयर खास फर्स्ट करके टीचर। खास करके घर के मेल सदस्यों के बारे में अगर मैं बात करूंगी, तो हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब इस तरह के हैं, बट मोस्ट ऑफ देम इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट वो फेसबुक वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा हेल्प करते हैं और वीडियो बना देते हैं, बाकी घर में हेल्प नहीं करते हैं। इससे बच्चे भी देखते हैं कि मम्मी इज सपोज टू डू। तो जी व्हेन मम्मी इज सपोज टू डू दिस, इफ दे आर टेलिंग, तो बच्चे भी यही चीज लर्न कर रहे हैं। एंड दिस इज द टाइम। और आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, इस चीज को पॉजिटिवली आप ये ले सकते हैं कि जी आपके बच्चों में आपको बहुत अच्छे संस्कार रोपने का मौका मिला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पंक्चुअलिटी क्या होती है। ये सब चीजें बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। तो शायद उसी के ऊपर एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है मैम। तो श्योर। फिलहाल लाइक वी नो लाइक teenagers are somehow they have got their technology advantage. They can connect to their friends virtually, you know. यस। But what about the small ones, like those are going to school? Still, ओके। so how they will connect and how parents will help them. How parents will help them. आप अभी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है एंड बिल्कुल बिल्कुल यस। सबके लाइफ में होता है मैम। यस। बट क्या करने से मैम पेरेंट्स लोग के लिए और आसान होगा बच्चों के लिए?
तो उसी विषय पे थोड़ा अगर आप और अच्छे से बोल पाएंगे मैम। यू आर एब्सोल्युटली ट्रू शुभंकर कि जो टीनेजर्स है वो लोग अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो जा रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं दे आर मिसिंग देयर टीचर्स, दे आर मिसिंग देयर स्कूल, दे आर मिसिंग देयर फ्रेंड्स एंड उन लोग बाहर खेलने भी नहीं जा सक रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपना वेकेशन मोड छोड़कर आप रेगुलर मोड में आ जाइए। जो उनके स्कूल के टाइमिंग से दिस इज द राइट टाइम कि आप उनको कुछ हेल्थ के बारे में बता सके, जल्दी उठने के फायदे। आप उठेंगे तो वो उठेंगे, आप अगर जल्दी बिल्कुल सोएंगे तो बच्चे जल्दी सोएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हो जाती है। इसके अलावा आप घर पे जो भी काम कर रहे हैं फैमिली एज अ होल सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट के किया कीजिए ताकि मॉम्स भी जल्दी फ्री हो सके और बच्चों को वो अटेंड कर सके। और बच्चे जब मॉम्स का अटेंशन नहीं पाते हैं तो वो लोग बहुत मतलब अंदर से चिड़चिड़ापन आ जाता है उनका, और वो जी जी चिड़चिड़ापन उनके बिहेवियर में बदलाव लाता है। और आपको ये भी चाहिए कि आप किस तरह से हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो जी आपने बिहेवियर को नोट कीजिए। इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, खास करके फादर, सरकार ने कहा है कि स्टे एट होम। तो वो हमारी एक इंडियन मेंटालिटी है, थोड़ा बाहर झांक के आते हैं क्या होता है, यू नो दैट टीचर्स जी जी चिल्ड्रन, जी बट ये बिल्कुल सेंस मैम। ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बहुत से बच्चे बिल्कुल खुद बोलते हैं कि पापा यू आर नॉट सपोज टू गो आउट, पर पापा क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, जाके देख के आता हूँ। हाँ, आपको जरूरी है, आप जाइए घर पे, जी बच्चे को समझा कर जाइए कि मैं इसलिए, क्योंकि बच्चे अंदर से चिंतित है। वो लोग न्यूज देख रहे हैं कि जो बाहर जा रहे हैं उनको पुलिस मार रही है, जो बाहर जा रहे हैं बिल्कुल उनको कहीं कोरोना ना हो जाए। तो बच्चों का चिंता समझकर आप उनको एक्सप्लेन कीजिए कि मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ और मैं ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, बच्चों के पास इतनी वोकैबुलरी नहीं होती कि वो अपने आप को जी एक्सप्रेस कर सके। तो जी मैम। बहुत जरूरी हमारे लिए ये बनता है कि हम उनके मन को समझे, हम उनकी अनकही बातों को समझे, हम तो उनकी उस आंखों हिसाब की से उनका भाषा रूटीन को हम लोग समझे। कैसे चेंज कर सकते हैं? खाली इज इट ओनली दैट वी हैव टू फिक्स द टाइम टेबल फॉर चिल्ड्रन और वी हैव टू लुक फॉर देम आल्सो? नो नो, सी व्हेन यू डू एवरीथिंग ऑन टाइम, आपको बोलना नहीं है कि आपको उठना है, आपको सोना है। आप अपना जी रूटीन एक सिंपल सा सीधा कर दीजिए, बच्चे अपने आप आपको फॉलो करेंगे। जी बच्चे जी आपको फॉलो करेंगे। और आपको जो टाइम मिलता है मेक इट अ फैमिली टाइम, साथ में बैठ के गेम्स खेलिए। अगर मॉम बिजी है तो आप उनको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मतलब पेरेंट्स में देखा गया है कि इट इज मॉम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच चिल्ड्रन एवरीथिंग रिलेटेड टू स्कूल वर्क। बट ऐसा कहीं नहीं है। पेरेंट्स, उनको आता है फिर भी वो लोग फेसबुक में बिजी रहते हैं, इंस्टाग्राम में बिजी रहते हैं। बहुत से पेरेंट्स पबजी में बिजी रहते हैं, बहुत से जी पेरेंट्स पबजी में बिजी रहते हैं और बच्चे कहते हैं कि आई कैन टेल यू मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स आर द बेसिस फ्रॉम लास्ट 2 months आई एम कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विथ माय किड्स। ओके, आई हैव जी मोर देन 35 सेंटर्स इन माय किड्स एंड आई एम कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद देम एवरी डे। तो जी उनकी बातें सुन के ये सब चीज का न्यूज आया है कि ये सब पेरेंट्स ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज बच्चे भी ये सीख रहे हैं कि भाई हम फ्री हुए, चलो मोबाइल लेके बैठ गए, चलो टीवी देख लिया, बिल्कुल कोई रूटीन स्पेसिफाइड नहीं है। तो जी जी। जब आप रूटीन तो में आते हैं तो आपके बच्चे आपसे बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को छोटे छोटे काम में इन्वॉल्व कीजिए। बहुत से छोटे जी छोटे काम है, चलो खाना खाने बैठ रहे हैं, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी खाना बना रही है, हम टेबल सजा देते हैं, हम बिल्कुल मम्मी को ये सब्जी फ्रिज से निकालने में हेल्प करते हैं। और ऐसा करते करते उनकी पढ़ाई भी हो जाती है। तो मम्मी कहती है कि मुझे भाई टमाटोज दो फ्रीज में से, तो टमाटोज न्यू वर्ड सीखते हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोग को जी काउंटिंग सिखानी है, बोलिए कितने कितने टमाटोज दिए आपने, मुझे 5 दिए, ओके। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ हम ध्यान रख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये और बहुत अच्छी आगे बात अगर हम पता सोचते चला। हैं कि भाई बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें, छोटे छोटे कामों में हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत से ऐसे क्राफ्ट है, एक्सक्यूज मी, फाइन मैम।
बहुत से ऐसे क्राफ्ट भी है जो हम अपने बचपन में किया करते थे। जी न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, हाँ, ये बात है कि क्राफ्ट के लिए आपके पास सामान नहीं है, तो आपके पास जो जी घर पे सामान है, ओल्ड न्यूज़पेपर से आप क्राफ्ट बना के बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत जी बहुत सी चीजें हैं, इफ यू एक्सप्लोर, यूट्यूब हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। वहां जाकर अगर हम देखते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। अगर आप जाके देखिए बच्चों के क्राफ्ट क्या है, गूगल में आप सर्च कीजिए, आपको अपने आप रास्ते मिलेंगे। तो आपको लगता है मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस स्टेप्स लाइक इक्वली काम हम्म डिस्ट्रीब्यूट करना, बच्चों को हेल्प करना, बच्चों से कुछ छोटे छोटे हम्म काम करवाना जिसके लिए उन लोग का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ता है, तो हाँ, इसके बिकॉज दे विल अलावा नॉट फील बोर्ड। हम्म जी 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 जी, तो इसके अलावा डू यू थिंक लाइक एनी डेवलपिंग एनी न्यू हॉबीज विल हेल्प देम? ऑफ कोर्स इट विल हेल्प देम डेवलपिंग न्यू हॉबीज। अब उनको तो अभी हॉबीज के बारे में पता नहीं है। व्हेन यू डू सम एक्टिविटीज विद देम, यू विल फाइंड दैट यस, चिल्ड्रन आर रियली इंटरेस्टेड इन दीज एक्टिविटीज। दे विल आस्क यू कि मम्मा ये चीज हम फिर कब से करें, कब दोबारा कब करेंगे। एंड व्हेन दे आस्क यू रिपीटेटिवली टू डू दैट वर्क, दैट मीन्स यू कैन असर्टेन कि हाँ, इस चीज में बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है। सिर्फ जरूरी बिल्कुल नहीं है सिर्फ पढ़ाई में हो सकता है वो बोर्ड गेम्स में बहुत अच्छे हो सकता है कि हम लोग इंडोर में गेम्स खेल सकते हैं, अपने आंगन में हम खेल सकते हैं, जी जिसमें हमारे ग्रॉस मसल्स डेवलप होते हैं, जिसमें हमारे फाइन मोटर डेवलप होते हैं। तो फाइन मसल्स डेवलप, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। बिल्कुल आप अगर आप चाहें तो जैसे कुछ चीजें जैसे मैं बता सकती हूँ जो मैंने पिछले दिनों अपने स्टूडेंट्स के साथ की थी कि दे कैन मेक देयर ओन बेड। मतलब खुद से अपने तकिए ठीक से रखने हैं, अपनी किताबें जगह पे रखनी है, देन ग्रेन रंगोली बनानी है, फिर न्यूज़पेपर से आपको कुछ ओरिगेमी चीज बनानी है, फिर जी हो सकता है एक शू में आप लेस डालना सिखा सकते हैं बच्चे को। ये छोटी छोटी सी स्किल्स नाइस है, नाइस, यस यस, एग्जैक्टली ये छोटी छोटी एग्जैक्टली। सी स्किल्स है जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। सो यू आर ऑल्सो मैम phonic trainer, यस, so ma'am please can you tell us something about this? phonics is a way to teach children how to read। ज्यादातर Okay. हमने देखा है कि बच्चे जब रीड करते हैं तो उन लोग अगर नया वर्ड आ जाता है वहां अटक जाते हैं, और जी ज्यादातर वो जी लोग रीड करना नहीं चाहते बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड। हम जी फोनिक्स इज अ वे जिसमें हम साउंड सिखाते हैं बच्चों को अल्फाबेट्स के, और वो अल्फाबेट्स के साउंड के थ्रू उन लोग वर्ड्स बनाना जानते हैं और वर्ड्स को करना जानते हैं। और नाइस साथ में उनको रूल्स भी सिखाते हैं कि अगर मुझे कट कट बोलना है तो CUT, और वहां अगर मैं CUTE बोलती हूँ तो वो यू का यू को हमको यू क्यों बोलना पड़ता है, पहले में हमने बोला, बाद में हमने यू यू क्यों बोला। जी तो जब क्यूट लिखते हैं तो इस तरह से बहुत सारी चीज, बहुत सारे रूल्स है स्पेलिंग के। इससे बच्चे रीड करना बहुत जल्दी सीखते हैं। एंड जूनियर KG के बच्चों से हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वो लोग भी ये कोर्स में एनरोल करते हैं, तो उनकी जी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो जाती है, उनको रीडिंग में इंटरेस्ट आता है। बेसिकली स्पेलिंग रूल्स और साउंड्स के थ्रू हम उनको सिखाते हैं कि इस चीज को कैसे पढ़ा जाता है। दैट्स रियली ग्रेट। सो डू यू थिंक मैम ये अभी छुट्टी में ये चीज अभी डेवलप हो सकता है मैम, हो सकता यूट्यूब को है, देख के? क्यों नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं, आप गूगल करेंगे फोनिक्स तो आपको बच्चों के लिए आपको वहां पे बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब में देख जी सकते हैं, आप अपने आप घर पे भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जी मैम जी जी। तो मैम जितना तक अभी पता चला ये सब हुआ आप लोग का, मतलब अभी बाहर मतलब कैसे अभी हम लोग एक्सटर्नली एक बच्चे को डेवलप किया जा सकता है, through this always through this obviously through this phonic and everything, through this actually communication is the key, proper interaction के साथ बच्चों यस बट जी। अंदर बच्चे के अंदर क्या चल रहा है वो हम लोग को कभी शायद पता चलता नहीं है क्योंकि उतना हम लोग टाइम दे नहीं पाते हैं मैम। तो हाउ टू हैंडल
आवर चाइल्ड इमोशनली, अगर हम लोग उतना अंदर तक जाना चाहें तो मतलब हम लोग कैसे हैंडल कर पाएंगे इमोशनली बच्चों को? सबसे पहले शुभंकर मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों के सामने नेगेटिव वर्ड जो है उनको ना दोहराया जाए। ठीक है, कोरोना है, पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, बट दिस ऑल गिव्स यू अ नेगेटिव इमोशन। जी अब बच्चों को ये सिखाना है कि नाउ दिस इज अवर लाइफ। हम मिल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, बट थोड़े दिनों बाद मिल सकते हैं। जी अब हमें पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन करनी पड़ेगी, तो हमें फोकस करना पड़ेगा। हम सब जी साथ में मिलके करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप पेरेंट्स अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल कम रखें। जब आप फ्रस्ट्रेशन जी लेवल अपना बढ़ा देते हो और बच्चों, बहुत से ऐसे भी पेरेंट्स हैं छोटे छोटे बच्चों पे हाथ उठाते हैं, तो ये जो चीजें हैं, फिर बच्चा क्या करता है, बच्चा वही सीखता है, हाथ उठाना। फिर थोड़े दिनों बाद अगर आप देखेंगे कि वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है तो सीधा ये घर पे या तो बड़े को मार देता है या बड़े भाई बहन को मार देता है। और इससे क्या होता है कि मम्मी लोग चिंतित हो जाती है कि अचानक से मेरे बच्चे में ये चेंजेस क्यों आ गए, पहले तो जी कभी ऐसा नहीं करता था। तो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। कंटिन्यूअसली आपको वही देख रहा है। आप अगर चीखते चिल्लाते हैं घर पे, तो बच्चा भी जी यही सीख रहा है। तो जी आपको एज अ पेरेंट एक अच्छा रोल मॉडल बनना है अपने बिल्कुल बच्चे के सामने कि आपसे अच्छी आदतें बच्चा, क्योंकि अब पहले तो आप नहीं थे तो उसने आपका गुस्सा कम देखा है। पहले आप, हो सकता है कि बहुत कम टाइम के लिए उसके साथ रहते थे, अब आप 24 जी घंटे उसके साथ रहते हैं। तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल हर बिल्कुल। हर छोटी छोटी चीजें बच्चा ऑब्जर्व करता है। आप कौन कौन सी एंड चीजों ये में एज में ये नेग्लेक्ट। लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स रहते भी है, जितना तक मैं यस जानता हूँ। यस यस, ये छोटे बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर रहते हैं और छोटी छोटी बात ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन यू डिनाई देम कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, आपको अभी बाहर नहीं जाना है, देन दे कम बैक विद द आंसर, आप तो गए थे ना, मैं तो जी बच्चा हूँ, बिल्कुल मुझे क्यों पुलिस मारेगी। यू नो दे कम अप, और आपके पास जवाब नहीं होता है कि बच्चे को हम क्यों नहीं ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि while you know browsing through Facebook and all, I have come across so many things like बच्चों की कंपटीशन है रिलेटेड टू कोरोना। ड्राइंग कंपटीशन है, बच्चे को ड्राइंग बना के सबमिट करनी है। जो चीज बच्चों के दिमाग से हमें निकालनी है, हम उतना उसके अंदर डालते जा रहे हैं। हाल जी ही जी में जी मैंने बिल्कुल। आई वुड जस्ट साइट एन एग्जांपल कि वेरी रिसेंट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग कि एक ऐसी कंपटीशन थी, पोएम की कंपटीशन थी, जहाँ पे क्लास 1-2 के बच्चों से कोरोना के बारे में पोएम बुलवाई जा रही थी, एंड दैट वाज अ कंपटीशन। एंड बिलीव मी शुभम सर, मुझे इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि ये क्या हो रहा है कि बच्चे जिनको जो बोल रहे हैं उसकी का मीनिंग भी उनको नहीं पता है। बस बिल्कुल 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 मैम। पेरेंट्स ने पोएम बनाई और आप देखिए कि हद तो तब हो जाती है कि जो कंपटीशन करवा रहे हैं वो टैग जी लाइन में ऐसे लिखते हैं कि दो बच्चे की फोटो है, आपको कौन से बच्चे, अगर इस बच्चे को आप ये बच्चे की अगर आपको अच्छी लगी, नंबर 1 की अच्छी लगती है तो आप लाइक का बटन दबाओगे, और नंबर 2 की अच्छी लगी तो आप लव का बटन दबाओगे। अब इसमें आपको कंपटीशन कराना है। अगर आपको माँ बाप कितने एक्टिव है, कितने अच्छे पोएट है ये जानना है, तो बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। क्लास 1 का बच्चा पोएम नहीं बना सक रहा है। जी 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 प्लीज बिल्कुल कीप मैम इट इन माइंड। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल बिल्कुल। ऑफ देम कि जो चीज हो रहा है बच्चों को बख्श दीजिए। बच्चों के दिमाग से पैंडेमिक, लॉकडाउन, कोरोना जैसे नेगेटिव वर्ड निकालिए और उनको एंड कंपटीशन पॉजिटिवली। आल्सो मैम, प्लीज नोट कंपटीशन आल्सो। या कंपटीशन। और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है ना, जहाँ फेसबुक पे उनका मतलब अगर होता है वीडियोस वगैरह डाला जाता है तो दे टेल पेरेंट्स कि मेरे कितने जी लाइक्स आए। एंड आई टेल यू जी विथ माई जी एक्सपीरियंस, इनिशियली फॉर 10 डेज में आज मेरी एक्टिविटीज हो रही है करीबन 32-33 डेज हो गए कि मेरी एक्टिविटीज कंटिन्यूस एवरी डे चलती है। इनिशियली जी फॉर 10 डेज मैंने भी एक्टिविटीज पोस्ट की थी बच्चों की फेसबुक पे, बट व्हेन आई गॉट दिस रिव्यू कि बच्चे बहुत क्यूरियस रहते हैं कि मेरे को कितने लाइक्स मिले, मेरे फ्रेंड को कितने लाइक्स मिले, तब मैंने एक्टिविटी पोस्ट करनी बंद कर दी। मैंने एक्टिविटी पोस्ट करनी बिकॉज दैट गिव्स अ कंपटीशन टू द चाइल्ड।
और पेरेंट्स में भी कंपटीशन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो कंपटीशन की दुनिया से बच्चे को बाहर निकालिए एंड बिलीव योर चाइल्ड, ही इज द बेस्ट एंड ही इज वन एंड ओनली। आपका बच्चा बहुत खूबसूरत है, आपका बच्चा बहुत होशियार है, बस आपको उसको अच्छे से नर्चर करना है। आप उसे अच्छे से संस्कार दीजिए, वो जरूर अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा। बाकी मार्क्स तो का क्या है? कम्युनिकेशन मैम, अभी गैप हो रहा है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में मैम, जी तो आई थिंक टाइम वाज द इशू, बट अभी तो ये अभी है नहीं बिल्कुल भी। तो यस तो उसी के ऊपर मैम पेरेंट्स वर्क कैसे करेंगे कि मतलब और अच्छे से, मतलब जो कि कनेक्शन बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ, बिकॉज बच्चों बच्चों के बिकॉज साथ आप जनरेशन गैप भी आ कम्युनिकेशन रहा बढ़ा है, सकते हैं। उसके साथ एज गैप भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोग का माइंडसेट हम लोग का माइंडसेट बहुत ही अलग है मैम। तो शायद कभी ना कभी ये चीज पेरेंट्स लेके बहुत मतलब प्रॉब्लम उन लोग को भी फेस होता है कि हम लोग कभी ये चीज कर नहीं पाएंगे। तो उन लोग के लिए मैम आप क्या बोलेंगे, जैसे कि मतलब एक कम्युनिकेशन ही मैम कैसे अच्छे से डेवलप हो पाएगा बच्चों और पेरेंट्स? कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए आपको जनरेशन गैप की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वी ऑल्सो हैड बीन थ्रू सेम फेज। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी वगैरह भी बड़े थे ना, तो जी इट्स नॉट अ जनरेशन गैप वी कैन से। ओके, वी कांट से दैट इट इज अ जनरेशन गैप। हाँ, ये हो सकता है कि सिचुएशंस बदल गई है, गैजेट बहुत आ गए हैं, तो हमें अपने आप को, पहले की बात है कि अपडेटेड रखना है। आज अगर ये चीज मैं जी टीनेजर्स को लेके उन पेरेंट्स को भी कहूंगी कि जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं, कि टीनेजर्स को आजकल मोबाइल वगैरह चलाना इतना अच्छा से आता है जितना हम पेरेंट्स को नहीं आता है। बहुत सारी चीजें वो बहुत अच्छी तरह ग्रास्प कर लेते हैं, और कुछ कुछ चीजें हमें पता भी नहीं होती उनके सोशल मीडिया के बारे में। और ये बच्चों के साथ अपनी दोस्ती बनाइए, बच्चों के साथ मतलब मैं ये कहूंगी कि बच्चा आपसे डरना नहीं चाहिए। आप इस तरह का रिलेशन बच्चे के साथ क्रिएट कीजिए कि कुछ भी हो जाए बच्चा आपको सच सच बता पाए। ऐसा ना हो कि बच्चे ने अच्छा आपको बुद्धू बना दिया कि हाँ, नहीं नहीं ये मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे फ्रेंड का अकाउंट है। कभी कभी होता है ऐसा कि क्योंकि अब सबके जी इंडिविजुअल मोबाइल्स है। और बिल्कुल बिल्कुल छोटे बच्चों के मामले में मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स कम्युनिकेशन गैप किस तरह से कम कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बैठिए, उनके साथ गेम्स खेलिए, उनके साथ स्टोरी सेशंस कीजिए। जी आप स्टोरी सुनाइए, उनसे स्टोरी सुनिए। बच्चों को टीचर टीचर खेलना अच्छा लगता है तो आप स्टूडेंट बनिए, वो टीचर बनते हैं। तो जी आपको ये देखना है कि आपका मकसद ये है कि बच्चे को आता है कि नहीं। तो बच्चा जब आपको क्वेश्चन पूछता है, आप गलत आंसर जी दीजिए, तो बच्चा एज अ टीचर प्राउड फील करता है, मुझे आता है पापा, आपने गलत बताया। ओ आई एम सॉरी, मैंने गलत बताया। ओके, तुम बताओ राइट क्या होता है। टीचर आप बताइए। एंड द चाइल्ड फील्स इलेटेड, हाँ, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बढ़ता है। और आप जो भी एक्टिविटीज बिल्कुल घर पे करते हैं, आप उसके वीडियोस बनाइए, और वो वीडियोस है ना आपके लिए लाइफ लॉन्ग यादगार बन जाएगी, और बच्चे के लिए भी यादगार बन जाएगी। वो अपने बच्चों को दिखाएंगे कि देखो हमारे मम्मी डैडी कैसे हमारे साथ खेला करते थे। और ये सब जो चीजें बिल्कुल हैं ना, ये एक बहुत मीठी यादें जीवन भर बनकर रह जाती है। बहुत से लोग ये जी मिस कर रहे थे कि हमारे पापा हमारे साथ नहीं खेलते, हमारी मम्मी नहीं खेलती, हमें दिन भर पढ़ाई करनी पड़ती है, इस क्लास से उस क्लास, पहले स्कूल, फिर ये क्लास, फिर ड्राइंग क्लास, फिर मतलब बच्चे का पूरा रूटीन हार्ड होता था। तो अब बच्चे के पास टाइम है, बच्चों के जी साथ आप उस एक्टिविटी को कीजिए। हाँ, बच्चे को आप डांस क्लास भेजते थे, फाइन, आप डांस, बच्चे को बोलिए डांस करते हैं, साथ में आप भी थोड़ा डांस कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो आज ये सेशन का मैम सबसे लास्ट क्वेश्चन मैम, व्हाट मैसेज मैम, इफ अगर आपको एक मैसेज देना है पेरेंट्स के लिए मैम, वो आपका एक मैसेज क्या रहेगा सब पेरेंट्स के लिए मैम? सब पेरेंट्स के लिए एक मैसेज रहेगा, सबसे पहले बिलीव इन योर चाइल्ड। जी ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने बच्चे पे भरोसा रख के, आपके बच्चे को सब कुछ आता है, बस आप उसको सही ढंग से सिखाइए। और आप अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रोल मॉडल है। आपको किसी के एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है कि इसके जैसा बनो बिल्कुल या उसके जैसा बनो।
आप अपने बिहेवियर पर चेक रखिए और बच्चा बिलीव मी बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा। और बच्चों को कंपटीशन की दुनिया में प्लीज मत डालिए। So viewers, आज का सेशन हम लोग के साथ, थैंक यू देखने के लिए। आपको कुछ डाउट हो तो फिलहाल मैं यही बोलूंगा कि यू कैन कांटेक्ट विथ our group, or you can directly contact with Mrs. Hema. She is available in Facebook, or you can write mail to us. You can send message to us. Thank you, Raurkela. Thank you, viewers. Thank you so much, Thank ma'am. you everyone. Thank you so much.